जन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछै पछुताए। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत। सतगुरां ने बड़ी रहमत की है, अमृत वेले की बख्शिश हुई है। आप जी ने रस भिन्ना कीर्तन श्रवण किया है। उपरंत लड़ीवार जप बाणी दी जो विचार असी कर रहे हाँ, अज 12वीं 13वीं 14वीं अते 15वीं पौड़ी की विचार असां ने करनी है। सतगुरां ने कल दसिया सी कि भाई सुनन का कितना क महात्म है। जे कोई अकाल पुरख परमात्मा के नाम नूं सुन लवे तो उन्होंने कितना महात्म है, उन्होंने सुनन का कितना फल मिलता है। तो अज सतगुरु बख्शिश करते हैं कि जिन्हां ने सुन के मन लिया परमात्मा के नाम नूं, जिन्हां ने सुन के मन लिया, उस बात सतगुरु बख्शिश करते हैं कि उन्हां दा जीवन वो किवें दे हन जिन्हां ने मन लिया, तो मनण दे नाल की महात्म है, की प्राप्त होंदा है, ये सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। विचारां दी आरंभता तो पहला फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन्ने की गत कही ना जाए। साध संगत संसार ते ना मनुख जे परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा है ना, जे परमात्मा दे विच अभेदता पाउणा चाहुंदा है, उहदे वास्ते ये बड़ा जरूरी है को यह गल मन लवे कि वो नेड़े है, वो घट घट दे विच है, हर जीव दे अंदर है, हर जगह व्यापत है। जदों यह मन लवे तो फिर ही कोई गल बन सकती है, उंज नहीं। नास्तिक लोग ये गल कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, तो उन्हां वास्ते सच्ची है भी नहीं साध संगत, क्योंकि वो मनते नहीं हैं। जिन्ना चिर मनांगे ना उन्ना चिर परमात्मा है ही नहीं है। परमात्मा प्रगट उदों होंदा जदों मन लईदा। जदों ये जान लवांगे कि वो है, जदों है दा एहसास होवेगा ना, फिर पता लगता है कि हाँ परमात्मा है। मैं अपने हत्थां दे नाल कारज कर रहा, वो है तो मैनू देख रहा है। मैं किसी नू बुरा भला कह रहा है, वो उदों भी देख रहा है, वो है। तो जे मैं किसी नाल निमरता दे नाल गल कर रहा, वो उदों भी है। जे मैं किसी का दिल दुखा रहा, वो उदों भी है। तो जे मैं किसी का साथ दे रहा, उदों भी है। जे मैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाना उदों भी है, तो जदों मैं संसार दे विच विचरदा वो उदों भी है। ये है दा एहसास होना।
कि वो है। ज़्यादातर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ 13 ਤੋਲ ਲਿਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਥ ਤੇ ਨੇੜੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ, ਨਿਜ ਆਤਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ 4 ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ 4 ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਵਾਏ, 4 ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਓਹਲੇ ਛਿਪੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਆਤਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰੁਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਖਣਾ ਇਹੋ ਸੀ
कि वो कौन है जिहड़ा ये जान सके कि वो नेड़े है, वो मैनू जान रहा है, मैं उन्होंने मन रहा हाँ। इस करके सतगुरां ने बख्शिश की कि जिहड़े मन लेंदे हन कि परमात्मा नेड़े है, सदीवी है, अंतर आत्मे भरपूर है, तो फिर उहदा नाम भी वो मन लेंदे हन कि हाँ उहदा नाम सच्चा है, उहदा सिमरन करना सच्चा है। वाहिगुरू वाहिगुरू जपन नाल वो सानू सुनदा है। तो जदों ये महसूस हुंदा है फिर वो मनुख किहो जे हन, वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, मन्ने की गत कही ना जाए। फिर उन्हां दी अवस्था, उन्हां दी गत, उन्हां दे बारे कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस जगह के उत्ते बैठे हैं, किहो जी उन्हां दी अवस्था है, किस तरह वो परिवार भी पाल रहे हैं तो अकाल पुरख के नाम दे विच भी जुड़े हैं। उन्हां दा था नहीं पाया जा सकता जिन्हां ने नाम नूं मन लिया, जिन्हां ने सुन के तो उहदा मनन किया है कि हाँ वो है। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तो जे कोई कहता है उन्हां बारे जानन की कोशिश करता है कि वो किहो जिहे हन, उस बाद में उन्होंने पछताना ही पैंदा है। क्यों? क्योंकि मन्ने की गत कही ना जाए, उहदे बारे कहा नहीं जा सकता जिहड़ा मनुख परमात्मा के नाम नूं मन लैंदा है। उहदी अवस्था बयान नहीं की जा सकती, उहदे बारे जानिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभेद हो जाता है काल पुरख। कागद कलम ना लिखन हार। तो जे कोई कहे कि जिन्हें मन लिया मैं उहदे बारे कुछ लिखा कि वह की करता है, की कार व्यवहार है वह, बाहर दीयां गल्लां ते लिख लवेगा, वह अंदर लिखना सौखा नहीं है ना। उहदे अंदर बारे किसी नूं की पता वो किन्ना जुड़िया होया है। असी एकदम फरमान दे दिंदे आ कि ये चंगा ये माड़ा है, पर असी किसी का अंदर नहीं ना पढ़ सकते। सतगुरु बख्शिश करते कहते कोई लिखण की कोशिश करे ना तो उन्ना कागज नहीं मिलना, तो ना ही उन्नियां कलमां मिलनियां, तो ना ही उन्हें लिखारी मिलने जिहड़े नाम नूं मनण वाले दी गत लिख सकन। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बै करन विचार। भावें बैठ बैठ करके जिन्नियां मर्जी विचारां कर लो, जिन्हां ने नाम नूं मन लिया, जिन्हां ने ये मनन किया कि वो है, वो सदीवी है, उहदा नाम सच्चा है, उन्हां दी गत जिहड़ी वो कही नहीं जा सकती, जिन्ना मर्जी विचार कोई कर लो। फिर नाम सतगुरु जी कैसा है, सानू ये भी तो दसो। आप जी ने दस दिता कि नाम नूं मनण वालियां दी गत कही नहीं जा सकती, पर नाम कैसा है, तो सतगुरु बख्शिश करते ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो ऐसा है, कैसा है सतगुरु जी, निरंजन होए। निरंजन, निरंजन भाव अंजन का अर्थ होंदा है सुरमा, तो सुरमा होंदा है काले रंग का। इस करके सतगुरु जी कहते आ ओह कालख तो रहत है। किहड़ी कालख तो? माया की कालख तो, माया के प्रभाव तो रहत है परमात्मा का नाम। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। ये तो साध संगत पहले मन के उत्ते टिप्पी है, तो दूसरा जिहड़ा मन शब्द है उहदे उत्ते टिप्पी नहीं है। इसका अर्थ बनता है जे को मन, जे कोई मन जावे, जे को मन जाने मन को, जे अपने मन दे विच ये गल मन लवे कि वो परमात्मा है, उहदा नाम सच्चा है, जिन्हों मैं याद करदा हाँ, जिहदी बाणी पढ़दा हाँ, जिहदा सिमरन करदा हाँ, कीर्तन विचार सुनदा हाँ, वो है, वो सदीवी है। जिहड़ा ये गल मन लैंदा है उहदी फिर गत कही नहीं जा सकती। ऐसा वो अकाल पुरख का नाम है। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जे किते कोई मनुख अपने हिरदे च गल बिठा लवे कि हाँ उस दीवी, उस परमात्मा की होंद है, उसका नाम सच्चा है, तो उहदे नाम नूं मनण दे नाल की हुंदा है, उस मनुख नूं की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु बख्शिश करदे मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध। हुण साध संगत जिहड़ी पिछली पौड़ी है ना, वो मन्ने शब्द के नाल आई है। मन्ने की गत कही ना जाए। मन्ने दे नन्ने दे उत्ते एक लां है,
तो इत्थे जिहड़ा है ना मन्नै दो लावां हैं। इत्थे अर्थ बनता है जे कोई मन लवे, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध। जे कोई अकाल पुरख के नाम नूं मन लवे ना, हिरदे दे विच धारण कर लवे, सुरत होवै मन बुद्ध, ਉਹਦੀ सुरत टिक जाती है, मन ते बुद्धि पवित्र हो जाती है, विकारां दे विचों खचित नहीं हुंदा। मन्नै सगल भवन की सुध, ਉਹਨੂੰ सारे भवनां की सोझी आ जाती है। की आद है की अंत है, सारा कुछ पता लग जाता है कि संसार ते मेरा की है, मैं किस दे लिए आया हाँ, की कारज है, सारे भवनां की उस मनुख नूं सोझी हो जाती है। मन्नै मोहि चोटा ना खाए, उस मनुख दे मूँह दे उत्ते विकारां रूपी चोटां नहीं पैंदियां, क्योंकि असीं सट्टां खाने आ ना हर रोज़। किते ਕਾਂ मार के घेर लैंदा है, किते क्रोध घेर लैंदा है, किते लोभ घेर लैंदा है, किते मोह घेर लैंदा है, किते हंकार घेर लैंदा है। तो सतगुरु बख्शिश करदे जिन्हां ने एहसास कर लिया कि वो नेड़े है, तो जिन्हां नूं नेड़े दिखण लग पिया, वो फिर विकारां 'च खचित नहीं हुंदे, फिर उन्हां दे मूँह दे उत्ते विकारां रूपी चोटां नहीं वजदियां। मन्नै जम कै साथ ना जाए, फिर वो मनुख जमां दी पुरी नूं नहीं जांदा, जम नहीं ਉਹਦੇ नेड़े आउंदे। फिर ਉਹਨੂੰ रे रे दरगह कहे ना को, आओ बैठ आदर सब दे। ਜਦੋਂ शरीर छड्ड के जांदा, सारे ओए ओए कह के नहीं आवाज़ मारते, सारे आदर नाल कहंदे आ जी आओ बैठो। जमां दी पुरी नूं मनुख नहीं जांदा जिहड़ा नाम दा मनन करदा है। ऐसा नाम निरंजन होए, वाहिगुरू दा नाम जिहड़ा है वो माया दे प्रभाव तो रहत है, वो ऐसा अकाल पुरख का नाम है। पर जे को मन जाने मन कोई, जे कोई मन लवे अपने मन के अंदर के वो जिहड़ा नाम है वो माया के प्रभाव तो रहत है, तो वो मैं जपांगा तो मेरा भला होवेगा, उस मनुख दा ही भला हुंदा है। वही इस संसार तो जिहड़ा तरदा है, जे को मन जाने मन कोई, जिहड़ा हिरदे 'च धारण करता है। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, उस मनुख नूं फिर किसी तरह की रुकावट नहीं पैंदी धर्म के रस्ते ते चलदे। फिर भावें बंद बंद क्यों ना कटिया जावे, तां भी उस मनुख का हिरदा जिहड़ा है ना टिक जाता है। मार्ग ठाक ना पाए, ठाक दा अर्थ हुंदा है रोक, किसी तरह की कोई रोक नहीं उस मनुख नूं लगदी। वो जदों धर्म के मार्ग ते चलदा है तो भावें बंद बंद कटिया जाए, पर वो अपने सिदक तो नहीं डोलता। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, कोई रोक नहीं सकता उस मनुख को जिहड़ा मन लैंदा है कि अकाल पुरख नेड़े है, उसदा नाम जिहड़ा वो सच्चा है। मन्नै पत स्यों प्रगट जाए, वो मनुख जिहड़ा है ਉਹਦੀ दरगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ अकाल पुरख ਵੱਲੋਂ पत टकी जाती है। संसार उत्ते भी वो मुख उजला लै करके जाता है संसार तो, संसार के लोग भी उसकी फिर इज्जत मान उन्होंने बख्शिश करते कि बड़ा भला मनुख है, बाणी पढ़ता है, सिमरन करता है। पत स्यों प्रगट जाए, प्रगट हो करके जाता है संसार तो, लोग वो गुण गान करते हैं, लोग ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ कि भाई वो मनुख बड़ा चंगा सी, सिमरन करता सी, बाणी पढ़ता सी, गुरु घर जाता सी। पर कौन जिन्हें मन लिया, जिन्हें हिरदे 'च धारण कर लिया कि परमात्मा का नाम सच्चा है। मन्नै पत स्यों प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ, फिर वो जिहड़ा मनुख है किसी होरां रस्तियां ते नहीं चलता, वो सिर्फ परमात्मा के बनाए हुए अकाल पुरख के बनाए हुए रस्ते ते चलदा है, किसी होर रस्ते ते नहीं चलता। किसी होर ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के रस्तियां जिवें बड़े हुए हुंदे हैं ना रस्ते के, इस पासे आ जाओ धागे तवीत कर दिंदे आ तुहाडा भला हो जाएगा, इस पासे आ जाओ देवी देवतियां की पूजा। पर सतगुरु कहते हैं वो मनुख इन्हां रस्तियां ते नहीं चलता, वो मनुख अकाल पुरख के दिते रस्ते से चलता है। मन्नै धर्म सेती सन बंद, उस मनुख का फिर सच्चे धर्म के नाल संबंध बनता है। वो परमात्मा के इस बनाए हुए धर्म के विच, सिमरन के विच, बाणी के विच जुड़ करके अपना जीवन बतीत करता है। ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा का नाम कैसा है
माया के प्रभाव तो रहत है। जे को मन जाने मन कोए, जे कोई मनुख मन लवे फिर गल बनती है। मन्नै पावै मोख दुआर, नाम नूं मनण दे नाल मनुख मुक्ति का द्वार पा लैंदा है, जिहड़ा नाम नूं मनदा है। मन्नै परवार साधार, वो आप ही नहीं मुक्त हुंदा, नाल अपने परिवार नूं भी मुक्त करता है, परिवार का भी भला कर जाता है। परिवार है साधार, परिवार नूं भी मुक्त कर लैंदा है, परिवार का भी सुधार कर लैंदा है, आप भी अंम੍ਰਿਤਧਾਰੀ होकर के जीवन बतीत करता है, तो परिवार नूं भी कहता है कि ये सतगुरां दा बख्शिया जहाज है नाम बाणी का, इहदे उत्ते चढ़िए। इस तरह करके साध संगत तो परिवार का भी भला करता है। मन्नै तरै तारे गुर सिख, नाम दे मनन दे नाल गुरु भी तर जाता है तो सिख भी तर जाता है। जिहड़ा नाम नूं मनदा है गुरु अपने सिख का भी भला कर दिंदा है, क्योंकि गुरु नाम का रूप हो करके विचरदा है, नाम रूप हो करके वो अपने सिख नूं तोरदा है। वो दसदा है कि नाम दे विच कितनी वडियाई है। जिवें हुण गुरु नानक साहिब जी सानूं नाम की वडियाई दस रहे कि जे कोई मनुख नाम जप लवे, नाम का मनन कर लवे। मन्नै नानक भवे ना भिख, जिहड़ा नाम नूं मन लैंदा है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करदे आ कि वो दर दर दे उत्ते भिखिया नहीं मंगदा फिरदा, वो दर दर दे उत्ते मनुखां दे कोलों नाम नहीं मंगदा फिरदा, अपनी मोख मुक्ति नहीं मंगदा फिरदा। वो फिर सच्चे गुरु तो ही अपने परिवार का तो अपना भला मंगदा है, वो दर दर दे उत्ते भटकदा नहीं है। ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा का नाम जिहड़ा है माया तो रहत है भाई, परमात्मा का जिहड़ा नाम है वह कालख तो रहत है। इस करके जियो मनुख जे को मन जाने मन कोए, जे कोई मनुख उस परमात्मा के नाम नूं अपने हिरदे च मन लवे, धारण कर लवे कि हाँ वो है, वो सदीवी है, उसका नाम सच्चा है, वो मनुख का भला है, वो अपना भी भला करता है तो अपने परिवार का भी भला करता है, समुचे संसार का भला करता है। सो इन्नियां कि बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।